Reservation next year. We are going to have it 50%. Yes, it is. Yes, smartly. Sir. One more. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Evening lunch. Ladies and gentlemen, you are please requested to keep standing. We'll start with the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनदल मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तुम्हारा हाथ है आपका तो देखो सब फोटो Kovilji, the First Lady, Srimati Savita Kovilji, Honorable Governor of West Bengal, Shri Keshrinath Tripathi, Honorable Governor of Uttar Pradesh, Shri Ram Nayak, the Health Minister of Uttar Pradesh, Shri Siddharthnath Singh, Shri Nandgopal Gupta, Minister of Stamp and Civil Aviation, Uttar Pradesh, Srimati Abhilasha Gupta, Mayor of Allahabad, Vice President of Indian Medical Association, Dr. Ashok Agarwal, President of Allahabad Medical Association, Dr. Anil Shukla, ladies and gentlemen, a very good evening to you all. It is indeed a matter of immense pride for each and every member to be a part of this historic celebration of the century-old glorious journey of Allahabad Medical Association. We are highly privileged and honored to have the Honorable President of India and the First Lady here with us today. We are absolutely humbled by your gracious presence, sir and madam, and we thank you immensely for accepting our humble invitation. May I now request the Honorable President, sir, to please inaugurate the program by lighting the lamp
And may I request the First Lady to please accompany the Honorable President, sir. दोनों लोग के बन जाएंगे ऐसे खड़े रहो जाओ नहीं उधर जाओ नितिन भैया सर नीचे कर लो नितिन आएगा ऑप्शन में नितिन और झुक जाओ ना एक झुका लेना और झुकाओ सबके हो जाए हाँ Thank you, Honorable President, sir, and Madam, and all the luminaries on the dais. Thank you so much. I now request the President I now request the President of Allahabad Medical Association, Dr. Anil Shukla, to deliver the welcome speech. Dr. Anil Shukla, please. Thank you. The Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, Honorable First Lady of our country, Srimati Savita Kovind, Honorable Governor of Uttar Pradesh, Shri Ram Nayak, Honorable Governor of West Bengal, Shri Kesrinath Tripathi, Minister of Medicine and Health, Uttar Pradesh, Shri Siddharth Nath Singh, Minister of Stamps and Civil Aviation, Shri Nand Gopal Gupta, Nandi ji, the Mayor of Allahabad, Srimati Abhilasha Gupta, Vice President of Indian Medical Association, Dr. Ashok Agarwal, respected dignitaries, members of Allahabad Medical Association, members of electronic media and press, ladies and gentlemen. On behalf of the Allahabad Medical Association, it is my great privilege and honor to welcome you to the centenary function of Allahabad Medical Association. It is the greatest honor for Allahabad Medical Association, branch of Indian Medical Association, and for the citizens of Allahabad that the Honorable President of our country, Shri Ramnath Kovind, has very graciously consented to be the chief guest of our centenary function. We shall forever be grateful to you, sir. We are doubly privileged and honored by the presence of the First Lady of our country, Srimati Savita Kovind, in our midst today. And it is my honor to welcome you to this holy city and the centenary celebrations. We are immensely grateful to the Honorable Governor of our state, Shri Ram Nayak, for his gracious presence here on the dais as the guest of honor. And I am privileged to welcome you, sir. The Honorable Governor of West Bengal, Shri Kesrinath Tripathi, has always stood by us in times of need and happiness, and it gives me great joy and pride to welcome you, sir, as the guest of honor of this centenary function. It is also our great pleasure to welcome the Minister for Medicine and Health, Shri Siddharth Nath Singh. He has always stood by the medical fraternity at all hours and is working tirelessly towards ensuring the better health of the citizens of our state. I also welcome the Minister of Stamps, Registration, Civil Aviation, Shri Gopal Nand Gupta, or Nandi ji, as we have always known him in Allahabad. It is my privilege to welcome the dynamic and ever helpful Mayor of Allahabad, Srimati Abhilasha Gupta. As we proudly celebrate the centenary of Allahabad Medical Association today,
in the midst of such an august gathering of dignitaries, an occasion rendered historic for posterity by the presence of the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, it is befitting to briefly dwell on the history of our making and also put on record the contribution of all the past members and office bearers whose dedication has brought our journey to this historic moment today. The association began its voyage 100 years back at the residence of Major B.D. Basu, situated in the heart of the city in Bahadurganj, with Dr. A.C. Banerjee as the first president and Dr. R.N. Banerjee, the first secretary. And it was from this address that the association functioned until some years later when it shifted to Elgin Road. In the year 2011, the office moved to its current location at 29 Stanley Road, where its prestigious blood bank is also situated on land donated by a philanthropist, Sri Madan Lal Ahuja, on 10th March 1980. A state-of-art blood bank started functioning in 2003 and has till now dispensed more than 5 lakh units of safe blood and blood components to the needy patients and helped save many precious lives. The AMA Blood Bank is known for its quality and for introducing several innovative features such as computer networking of all procedures, barcoding, and biometric database. The association, besides looking after the interest of medical fraternity, also shoulders its social responsibilities regularly. It carries out health camps in villages under the Aao Gaon Chalo program of Indian Medical Association and has contributed towards the Swachh Bharat Abhiyan of the Government of India by building toilets and girls' schools in nearby villages. Every year it holds free health camps during the annual Kumbh Mela organized on the banks of the river Ganga and for the entire duration of the month-long congregation. Very soon, a charitable dispensary will once again start functioning and will provide free consultation and medicines to the citizens of the city. Medicine is a profession which requires constant education and upgradation of skills, and the association organizes regular scientific meetings where the best and the most knowledgeable speakers from across the country share their knowledge and skills for the ultimate benefit of the people of the city and surrounding districts. This convention center will be used for scientific and academic activities, and the rehabilitation center will similarly benefit the city. Much water has flown down the Holy Ganga since our inception in 1918, bringing great hope and confidence along with new challenges. And I am sure the founding fathers of our association would have been proud of our achievement in a spirit exemplified by the presence of Professor Raj Baweja, recipient of Padma Shri Award and a teacher par excellence for many of us. She is attending this function in spite of sustaining a fracture just 2 days back, when in all humility she had personally come to collect the card. It is this spirit which drives and motivates us to do our best as doctors towards ensuring a healthier and happier future for the citizens of our great country. Thank you. Long live IMA. Jai Hind. Thank you, Dr. Anil Shukla, for the welcome address and also to us about our rich history and glory of Medical Association. The centenary celebration of Allahabad Medical Association is indeed illuminated by the presence of eminent personalities, and we take this opportunity to show our gratitude by presenting a memento to our esteemed guests. May I please request the President of AMA, Dr. Anil Shukla, to present a memento to the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind ji.
जूती भैया पैर लग रहा है। मेरा कुछ नहीं लग रहा है, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ तो कहाँ पैर लग रहा है? मेरा पैर यहाँ है। May I now request Dr. Alice नितिन भी Ojha, तुम्हारा पैर लग रहा है यार। past president of Allahabad Medical Association and also the chairman of the centenary year celebration of Medical Association, to please present a memento to the First Lady, Srimati Savita Kovinji. May I now request Dr. Anil Shukla to please present a memento to the Honorable Governor of Uttar Pradesh, Shri Ram Naik. May I now request Dr. Ashok Agarwal, the Vice President of Indian Medical Association, to please present a memento to the Honorable Governor of West Bengal, Shri Keshri Nath Tripathi ji. I request Dr. Anil Shukla to please present a memento to the Honorable Minister of Health, Uttar Pradesh, Shri Siddharth Nath Singh ji. May I request Dr. Ashok Agarwal to please present a memento to the Stamp and Civil Aviation Minister, Nand Gopal Gupta ji. इसके बाद आते हैं। क्या नहीं जा रहा है ना? May I now request Dr. Anil Shukla to please present a memento to the Mayor of Allahabad, Srimati Abhilasha Gupta. To mark the centenary year of Allahabad Medical Association, the Department of Post UP Circle is releasing a special cover with catchet cancellation. The proposal of the same was put forth and pursued by the Phila Foundation. I have the pleasure to invite the Chief Postmaster General of Uttar Pradesh Circle, Shri V.K. Tiwari, and the Secretary of Phila Foundation, Dr. Manishi Bansal, to please get the special cover released by the Honorable Governor of Uttar Pradesh, Shri Ram Naik. आराम से दिन नाटक ना हो। Honorable Governor, you are please requested to do the honors. नीचे करो, नीचे करो। This may be then presented to the Honorable President of India and all the dignitaries on the dais. आधो मार लो पीछे से। We are indeed highly obliged and privileged to have the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind ji, here with us today. May I take this opportunity to please request the Honorable President to inaugurate the convention center. ये अलावा अब तो पीछे रहना भैया।
It is indeed a proud moment for each one of us, and I thank you, Honorable President Sir, for inaugurating and being a part of this program today. I have the pleasure now to request Shri Siddharth Nath Singh, Honorable Minister of Medical and Health, Uttar Pradesh, to please deliver his speech. प्रयाग की पावन भूमि पर आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, आदरणीय बंगाल के राज्यपाल के मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरे कैबिनेट के कुलीग नंद गोपाल नंदी जी, यहाँ की महापौर अभिलाषा गुप्ता जी, IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, त्रिभुवन सिंह जी, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर LS ओझा जी, यहाँ पर बैठे हुए सभी गणमान्य इलाहाबाद के नागरिकगण, ये आज एक बहुत सुंदर मौका है और जो इलाहाबाद से सब लोग आते हैं उनको आनंद भी आ रहा होगा। इतना सुंदर और इतना भव्य ऑडिटोरियम शायद इलाहाबाद में है नहीं जो आज देखने को मिल रहा है। आज 100 साल हो रहे हैं और 100 साल के अंदर इतिहास में कई पन्ने भी पलटे गए हैं, मगर शायद 1918 में जब इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का जन्म हुआ, उसके 10 साल बाद IMA ही बना था। तो आपने 100 साल के अंदर और फिर IMA का बनने के बाद आज आपने 100 साल पूर्ण होने पर इतना भव्य सुंदर ऑडिटोरियम बनाया है, तो आपने नई ऊंचाइयों को भी पाया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयां। आपके ब्लड बैंक के बारे में बहुत चर्चा होती है और मैं इतना ही कह सकता हूं कि लाखों की संख्या में आपने यूनिट्स दिए हैं और हजारों की संख्या में लोगों को, जो मेरी जानकारी है उसको करेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर अनिल जी, कि 20 से 25 हजार रोगियों को आपका ब्लड बैंक मिला है, जिससे उनको इसका लाभ मिला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई फिर से। और मैं इस ऑडिटोरियम के बारे में जब कहूं तो जिन्होंने इसको डोनेट किया था, मदन लाल आहूजा जी के बारे में ना कहूं और उनका शुक्रिया ना कहूं तो ये अच्छा नहीं होएगा। आज उनकी ही जमीन है जिसके कारण ये इतना भव्य सुंदर ऑडिटोरियम बना है। अब मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक हम लोग की स्वास्थ्य नीति आई है और उस स्वास्थ्य नीति के अंदर मैं संक्षिप्त में कहूंगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर जो प्राइमरी केयर है या क्लिनिकल केयर है उसको हम किस प्रकार से प्रिवेंशन क्लिनिकल केयर की तरफ जा सकें, किस प्रकार से जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा फोकस कर सकें सेकेंडरी या टर्शरी केयर की तरफ, और किस प्रकार से मेडिकल स्टाफ जो है, हेल्थ वर्कर्स हैं या स्टाफ नर्सेज हैं, ANMs, GNMs हैं, वो किस प्रकार से प्रिवेंशन के काम पे लग सकें और प्राइमरी क्लिनिकल केयर पे रख सकें, वो हम लोग की ये स्वास्थ्य नीति लेकर आ रही है। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है यूपी की हेल्थ सर्विसेज के अंदर,
और जब पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं तो आपका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है और आने वाले समय में आपका रोल रहेगा। और इसलिए मंत्री के रूप में आप लोगों से आग्रह पहले भी किया है, मगर अब फिर पुनः आग्रह करता हूं, क्योंकि हमारा एक ढांचा भी जो था उसको हम लोग ने तैयार किया है। बिकॉज विदाउट अ पॉलिसी देयर वाज नो पॉइंट स्पीकिंग टू यू ऑल एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम लोग के जीवन में कहीं एक साल के अंदर बात करें तो 8,640 घंटे होते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एक साल के लिए आप लोग अपने 2 दिन हर महीने के कीमती दिन, वो कहीं मैं 10 घंटे लगाऊं तो 240 घंटे बनते हैं साल के। 8,640 में से 240 घंटे आप हमें दे दीजिए। हम लोग दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक बहुत बड़ी कमी है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा एक जो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा आज इस शुभ अवसर के दिन कि आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं, और आने वाले समय में कुंभ का एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है। और इस कुंभ के पर्व पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसको ODF बनाने का प्रयास किया। ODF बनाने जा रहे हैं ये कुंभ, जिसमें 15 करोड़ श्रद्धालु लोग आएंगे और शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये लिखा जाएगा कि हम लोग ने 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए हैं इस कुंभ के लिए। तो अगेन हम एक इतिहास वहां भी रखने जा रहे हैं, मगर वहां पर 3 कैंप्स खाली हेल्थ के आपके माध्यम से लगे तो वो कम होएगा, क्योंकि संख्या 15 करोड़ की है। आप लोगों से उस पर भी अनुरोध है कि आइए, आप लोग हमारे साथ आए, हम आपके साथ आए, दोनों मिलकर कुंभ को भी एक ऐसा ऐतिहासिक कुंभ और बनाए स्वास्थ्य की दृष्टि से। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for those kind and encouraging words. We are privileged to have with us the Honorable Governor of West Bengal, Shri Keshrinath Tripathi ji. Honorable Shri Tripathi ji belongs to Allahabad. Being born and brought up here, he is an accomplished author and a poet and has published many books. We are highly obliged to you, sir, for all the help we receive from you. भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद के सदस्य श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री नंदगोपाल नंदी जी, इलाहाबाद की महापौर श्रीमती अभिलाषा नंदी जी, डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, डॉक्टर एल.एस. ओझा जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर शार्दुल सिंह जी, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी चिकित्सक बंधु, आमंत्रित देवी और सज्जनों, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन लंबी यात्रा पूरी कर चुका है। किसी भी संस्था के लिए 100 वर्ष बहुत होते हैं, और जब ये 100 वर्ष सक्रियता के साथ बीत जाए तो संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, सब कहीं न कहीं श्रेय पाने के अधिकारी होते हैं। अपनी सेवाओं के माध्यम से
इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन सदैव न केवल महानगर की पर आसपास के जिले के लोगों की चिकित्सा सेवा की आपूर्ति करता रहा है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन और इसके सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को 100 वर्ष पूरा करने के अवसर पर। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यह शताब्दी वर्ष प्रेरणा का वर्ष होगा और हम सब नए उत्साह के साथ चिकित्सा को नए स्वरूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे। मैं स्वागत करता हूं आज आप सबके बीच में महामहिम राष्ट्रपति जी का। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि महामहिम जी इस कार्यक्रम में अवश्य आइए। इलाहाबाद नाम को महानगर है, लेकिन कभी कभी हमारे मन के अंदर पीड़ा होती है कि ये उपेक्षित शहर हो गया है। जितना श्रेय मिलना चाहिए, जितनी भागीदारी देश के विकास में इलाहाबाद की होनी चाहिए, कहीं न कहीं मुझे उसमें कमी दिखाई पड़ती है। लेकिन ये मंच इसके लिए नहीं है। मैं केवल इतना कहूँगा, हमारे जितने चिकित्सक बंधु और बहनें हैं, उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ इलाहाबाद की जनता की सेवा करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब केवल चिकित्सा क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, बल्कि बहुत से हमारे चिकित्सक बंधु और बहनें समाज सेवा के कार्य में भी जुड़े हैं। इसलिए इलाहाबाद के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी उनका महती योगदान है, जो प्रशंसनीय है। एक चीज़ और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं महामहिम को सुनना। हमारे यहाँ केंद्र सरकार ने नारा दिया है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। और स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का स्वप्न तभी साकार होगा जब हमारे चिकित्सक इस दिशा में सोचें और इस दिशा में प्रयासरत हों। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इलाहाबाद के जितने भी हमारे चिकित्सक भाई बहनें हैं, वह इस दिशा में सक्रियता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। कैसे हम स्वस्थ बने, कैसे हम स्वच्छ रहें, प्रत्येक पेशेंट जो उनके पास आता है उसका तौर तरीका बताते हैं और इस तरह से राष्ट्र के इस कार्यक्रम के पूरा करने में भी अपना सहयोग देते हैं। मैं एक बार पुनः माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को और सभी को अपनी ओर से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Governor, for your words of wisdom. We are privileged and obliged to Honorable Governor of Uttar Pradesh, Shri Ram Naik, for being a part of our program. May I now request the Honorable Governor to please get a speech. इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और इलाहाबाद का वैभव श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी, प्रदेश के शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता जी, इलाहाबाद की महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, चिकित्सकगण, आमंत्रित महानुभाव, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के ऐतिहासिक शताब्दी समारोह में
माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल और जैसा मैंने कहा कि इलाहाबाद का वैभव, इलाहाबाद के सुपुत्र राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी जी भी आज यहाँ है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मेरे नज़र में तो दूध में शक्कर की मिलावट हो गई है दोनों के आनों के कारण। और सविता जी आई है तो इसमें केसर का गंध आ गया है और तीनों का स्वागत करने का आनंद है। ये त्रिवेणी संगम का शहर है, इसलिए मुझे लगता है कि ये त्रिवेणी संगम यहाँ भी हो गया है। बहुत अच्छा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में आने का भाग्य मिलता है। अब राष्ट्रपति जी है। राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के नजरियात से हम देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश से देश के लिए पहले राष्ट्रपति के नाते हमारा सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसा उनका कार्यक्रम इस समय पर शताब्दी समारोह में होना, यह उनकी विशेषता है। मैंने उनको आपकी इतना नहीं लेकिन कुछ नज़दीक से जरूर देखा है। शालीनता क्या होती है इसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनके ओर देखे, उनको मिले, उनको नमस्कार करें तो शालीनता का पता चलता है। ऐसा यह व्यक्तित्व है और ये व्यक्तित्व अपने मेहनत से बन गया है। यानी एक कानपुर के नज़दीक का देहात और वहाँ से आगे बढ़ते हुए कानपुर में पढ़ाई, दिल्ली में वकालत और ये करते करते राजनीति और राजनीति करते करते मेरा भाग्य रहा कि उनका और मेरा काम के लिए भी बहुत नज़दीक का संपर्क आया, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे। उन्हीं दिनों में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद थी उसका मैं पेट्रोलियम मंत्री के नाते सदस्य था। बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति का अध्यक्ष था और मेरे माननीय सदस्य उस समिति के थे और आज वो हमारे राष्ट्रपति बन गए हैं। अपने आप में एक अच्छा आनंद लगता है और बहुत शानदार और मैं मानता हूँ कि ऐतिहासिक घटना है और इससे ऐतिहासिक घटना में आने का जो आनंद है वो स्वाभाविक है। संस्था के कोई भी संस्था के लिए शताब्दी ये अपने आप में बहुत महत्व का होता है। नहीं तो हम देखते हैं कि संस्थाएं बनती हैं और संस्थाएं बिगड़ती जाती है और इसलिए संस्था 100 साल तक चलना ये अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए जब शताब्दी का समारोह हो रहा है ऐसे समय पर जिन पदाधिकारियों ने एसोसिएशन के लिए काम किया, ऐसे सभी पदाधिकारियों को भी जो आज नहीं है उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं और आज जो काम कर रहे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि बहुत अच्छा काम आपके अधिवेशन समिति का एसोसिएशन के हो रहा है। वैसे देखा जाए तो सिद्धार्थनाथ सिंह आपके ही हैं और क्या मालूम अभी मंत्री हो गए लेकिन उनका नजरिया इलाहाबाद के बाहर ज़्यादा नहीं जा रहा है या शायद उत्तर प्रदेश के बाहर भी नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में सबसे अच्छा इस प्रकार का यह ऑडिटोरियम बना है, सभागृह बना है। मैं इससे बिल्कुल क्या बोलते हैं सहमत नहीं हूँ
अब मेरी मातृभाषा मराठी है, कभी कभी हिंदी शब्द नहीं आता है, लेकिन मेरा भाव तो आपने बराबर समझा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी हिंदुस्तान में घूमता रहा हूँ, घूमा हूँ। कोई भी मेडिकल एसोसिएशन के पास अपने खर्चे से, अपने प्रयास से इतना सुंदर हॉल सारे हिंदुस्तान में नहीं बना है। ऐसा ये सारा देखने के बाद लगता है। और ऐसा ये अवसर एक सिंहावलोकन का अवसर होता है। आज तक क्या क्या वर्णन किया गया है, मैं उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं मानता हूँ कि यहाँ पर रक्तदान की व्यवस्था है, यहाँ पर गाँव आपने गोद लिया है, उनके लिए भी काम कर रहे हैं, और कई प्रकार की जो बातें हैं वो आपको मालूम है। और इसलिए जो काम किया है उसकी एक जानकारी देना, और साथ ही साथ यह अवसर होता है सिंहावलोकन का। हम क्या हुआ है वो देखे, लेकिन सिंह जैसा आगे जाने की तैयारी करता है तो आगे कैसे जाए इसका भी एक संकल्प करने का ये समय होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में ये अवसर आपको आ रहा है जब अगले साल यहाँ कुंभ मेला हो रहा है। अब कुंभ मेला का वर्णन हो गया, आपके मंत्री ने भी किया है, बात भी सही है। यानी 13-14 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ क्या सुविधा होगी ये देखने के बाद नहीं आने वाले। उनके मन में तो इतना है कि दुनिया में जीवन में आए हैं तो हम यहाँ आए हैं, तो कैसा त्रिवेणी संगम है, वो आस्था के कारण यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आस्था के कारण जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो आपके न बुलाए हुए मेहमान हैं, लेकिन ऐसे लोगों का ठीक प्रकार से स्वास्थ्य का ख्याल करना यह आपका भी दायित्व होता है। सरकार केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है। इसके लिए आवश्यक धन भी सरकार की ओर से दिया जाएगा, लेकिन मनुष्य शक्ति जो है वो आपके यहाँ से ही मिल सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह कुंभ अपने आप में उसका जो महत्व है दुनिया के दृष्टि से, एक हमने देखा कि अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ। यानी योग का महत्व सारे लोग जानते थे, दुनिया वालों को भी मालूम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको यूनो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। और हम देख रहे हैं कि भारत में ही नहीं तो दुनिया के कई देशों में योग का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। वैसे ही यह जो आपका कुंभ होगा, अपना कुंभ होगा, आपका कहना मैंने बराबर नहीं, मैंने बोला कि मेरी हिंदी में गलती हो सकती है। अपना जो कुंभ हो रहा है वह कुंभ फिर से यूनेस्को को भी लगा कि यह दुनिया की एक अद्भुत इस प्रकार का आयोजन है। और जब दुनिया ने ये कहा, यूनेस्को ने कहा कि यह अद्भुत है, तो यह अद्भुत कैसा है ये दुनिया को दिखाने का काम आप और हम सब मिलकर करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश वासियों को गोवर्धन पर्वत कैसे उठाना होता है यह मैंने बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर यह काम करेंगे और अपना जो सांस्कृतिक वैभव है वो सांस्कृतिक वैभव का हम भी आनंद लेंगे और दुनिया वालों को भी हम यह आनंद देने का काम करेंगे। ऐसा काम हम सब मिलकर करें। यह ऐसी धरोहर है और ऐसे धरोहर के समय पर और जब शताब्दी का समारोह हो रहा है ऐसे समय पर मैंने एक छोटा सा किताब लिखा है। वो किताब की चर्चा मैं यहाँ नहीं करता हूँ, लेकिन उसका शीर्षक है चरैवेति चरैवेति। जीवन में जो अनुभव आए हैं वो उसमें लिखे हैं, लेकिन चरैवेति चरैवेति का इस समय पर एक सार्थक शाश्वत संदेश है। वह संदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ। चरैवेति चरैवेति का मतलब है चलते रहो चलते रहो। आयतर्य ब्राह्मण में
एक संस्कृत पुराना ग्रंथ है, 3-4 हजार साल पुराना। इंद्र राजा को सलाह देता है कि कैसा राजा ने व्यवहार करना चाहिए। उसके 2 श्लोक है। पहले श्लोक में ये कहा है कि जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो खड़ा हो गया उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जो चलता है उसका ही भाग्य चलता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और दूसरे श्लोक में ये कहा है कि जैसे मधुमक्खियां एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती है और मध शहद इकट्ठा करती रहती है, या जैसे पक्षी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाते हैं और मीठे मीठे फल खाते रहते हैं, या जैसा वो सूर्य सुबह से उठकर शाम तक चलता रहता है, सारे दुनिया को प्रकाश देता है, जीवन देता है, और इसलिए वह सूर्य जगतवंद्य हुआ है। तो आपको भी सूर्य के से जगतवंद्य होना है, तो आपको भी सूर्य के जैसे चलना पड़ेगा। और इसलिए इस भूमिका में हम सब मिलकर चलते रहेंगे। और आप जब चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर अयोध्या, इलाहाबाद कहिए या प्रयाग कहिए, जो भी कहना है, हम सब मिलकर आगे जाएंगे। और इस आगे जाने के लिए हम सब मिलकर जब 100 साल पूरे होकर दूसरे शतक में जा रहे हैं, तो दूसरे शतक में यही संकल्प करेंगे कि आज तक जो किया है उससे और अधिक काम अच्छा आगे करेंगे। और उसमें से जो बात स्वास्थ्य मंत्री ने बताई, उसमें से एक छोटा सा परिवर्तन आप कर सकते हैं। क्या, देखिए, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन व्यवसाय के लिए, 1 दिन परिवार के लिए और 1 दिन ग्रामीण भारत के लिए। यदि हम ये करते हैं तो निश्चित तौर पर देखते देखते ग्रामीण का स्वास्थ्य जीवन भी सुधर सकता है। ऐसा कुछ संकल्प करने का हम तय करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Thank you, Honorable Governor, for your kind words. They were encouraging, and your fond reminiscences. It is indeed a proud moment for Allahabad Medical Association to have the gracious presence of the Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind, and the First Lady, Srimati Savita Kovind, on the historic occasion of the centenary year celebration and the inauguration of the convention center. We are highly indebted to you, sir and madam, for accommodating us in your highly busy schedule. May I humbly request the Honorable President, sir, to please address the August gathering. इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश में स्टैंप मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, शहर की मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, देवियों और सज्जनों,
जिस समय हम लोग राष्ट्रगीत का गायन कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं अपने मन की बात आपके साथ शेयर करूं। पिछले लगभग 8 माह के अंतराल में मुझे 12 देशों के विदेश दौरे पर जाने का अवसर मिला और राष्ट्रपति होने के नाते एक परंपरा है, जिस प्रकार की यहाँ है उसी प्रकार की वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर मुख्य अतिथि बनकर के गया तो स्वाभाविक है जो नेशनल एंथम होगा वो इंडियन नेशनल एंथम पहले, और उसी की कंटिन्यूटी में उनके देश का उनका नेशनल एंथम। और ये जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है उस समय भी यही होती है। मैंने प्रत्येक देश में देखा, स्वाभाविक है नेशनल एंथम तो गाने वाले हम और हमारे अधिकारी 60-70 अधिकारी होते हैं उस देश में, जो इंडियन डायस्पोरा होता है वो लोग आते हैं, वो गीत गाते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो एक बड़े ऊंचे स्वर में और सामूहिक रूप से, और ऐसा लगता है कि उनको अपने देश के राष्ट्रगीत को गाने में कितना उसको उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं और हर्षोल्लास होकर के और वो अपने राष्ट्रगीत को गाते हैं। वो आज मैंने आप लोगों के बीच में देखा। समाज के आप एक इनलाइटेंड कैटेगरी के लोग हैं। मैं चाहूंगा कि जो परंपरा यहाँ आप अपने कार्यक्रम में रख रहे हैं, ये परंपरा हमारे पूरे देश में स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक आप प्रेरणा के स्रोत बने। अभी क्या होता है कि राष्ट्रगीत गाते समय स्वाभाविक है मंच पर, लेकिन मंच पर कितने लोग होते हैं, लेकिन ये भी होता है कि गाते गाते कभी कभी लोग बाद में जब जो कंक्लूडिंग फंक्शन में होता है राष्ट्रगीत, उसमें लोगों को देखा है आपने, उनको इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि कहीं उनकी ट्रेन ना छूट जाए, बस ना छूट जाए। कार्यक्रम की समाप्ति के पहले ही, राष्ट्रगीत के पहले ही वो उठने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता कहीं ना कहीं इस पर हम लोग जो प्रबुद्ध वर्ग है समाज का, उसको एक आगे आना पड़ेगा और इसके हम एक परंपरा डालें। राष्ट्रगीत जब होगा पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वर के साथ, लय के साथ, और जब तक हम अपने स्थान नहीं छोड़ेंगे, जब तक राष्ट्रगीत का पूरा नहीं होता। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं, आपके एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरे होने पर आप सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई। मुझे बताया गया है कि इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अस्तित्व में आने से 10 वर्ष पहले हुई थी, और इसलिए इस अगर देखा जाए उनकी आयु की दृष्टि से तो इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की आयु अधिक है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये शहर, इलाहाबाद का शहर, बौद्धिक रूप से अग्रणी होने की परंपरा के अनेक उदाहरणों में से एक है। माननीय केसीनाथ त्रिपाठी जी का यहाँ आने का आग्रह था, और वो भी फोन पर। तो मैंने एक सवाल इनसे किया था कि त्रिपाठी जी आप हमें ये बताइए, आपकी फ्रेटर्निटी जो है वो लीगल फ्रेटर्निटी रही है, आप ये मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए क्यों वकालत कर रहे हैं? तो उनका बहुत बहुत उपयुक्त उत्तर था। उन्होंने कहा कि मेडिकल फ्रेटर्निटी और लीगल फ्रेटर्निटी जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो एक समाज में नई गति और नई ऊर्जा आती है। और दूसरा उनका एक और जस्टिफिकेशन था कि
मेरा गृह नगर है इलाहाबाद, और यदि आप आएंगे तो हम सभी इलाहाबाद वासियों को बहुत प्रसन्नता होगी। त्रिवेणी संगम के तट पर बसे इलाहाबाद शहर में आकर हर किसी को प्रसन्नता होती है और मन भी करता है कि संगम तक पहुंच सके, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं। इलाहाबाद का कुंभ मेला प्राचीन काल से ही, जिसका उल्लेख किया माननीय राम नायक जी ने भी, प्राचीन काल से ही आकर्षण और अध्ययन का विषय भी रहा है। दिसंबर 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेला को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। बहुत बड़ी बात है। अब कुंभ मेला पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर बन गया है, ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। और इस पर मुझे बताया गया कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने PhDs की हैं, उन्होंने इसको एज ए सब्जेक्ट चूज किया है कि भाई यहाँ पर 10 करोड़, अभी तो 15 करोड़ की बात होती है, 10 करोड़ से कभी कम नहीं आए, तो ये 10 से 15 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। और इतने, ये विदेशों में उन्होंने लोगों ने सर्वे किया, उन्होंने कहा इतने लोग आते हैं और हर कोई अपना एक मिशन मान करके एक गंतव्य स्थल कि हम जाएंगे, स्नान करेंगे, वो शरीर से कांप रहा है, कपड़े नहीं है, सब कुछ नहीं है, उनको कई असुविधाएं होती हैं यहाँ आने में, ट्रेन में, बसेस द्वारा, पैदल, कितना पैदल लोग चलते हैं स्टेशन से और वहाँ तक पहुँचते हैं, सब पैदल चले जाते हैं एक धुन में। और वो जो इसके बावजूद फिर भी कहीं किसी प्रकार का वायलेंस नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं टूटती। और इस पर इसलिए PhDs हो रही हैं। ये एक इसकी जो प्रामाणिकता है इस त्योहार की, वो चूँकि इस इलाहाबाद शहर में होता है, इसलिए मैं आप सबको इस इलाहाबाद होने के नाते, आप सब लोग यहाँ के निवासी हैं, मैं आप सबको इस कारण से और भी एक अतिरिक्त बधाई देता हूँ। साहित्य, विज्ञान, गणित, दर्शन, राजनीति और प्रशासन समेत सभी क्षेत्रों में इलाहाबाद शहर अनेक विभूतियों की जन्मस्थली और कर्मस्थली रहा है। यहाँ से भारतीय जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता सेना, उसके तो यहाँ कैंप्स लगते रहे हैं। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े 2 डॉक्टर्स पद्मश्री और 3 डॉक्टर BC राय अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे बताया गया है कि सप्ताह भर चलने वाला एसोसिएशन का शताब्दी समारोह परसों डॉक्टर डे के साथ के रूप में संपन्न होगा। इस संदर्भ में एक महान राष्ट्र निर्माता डॉक्टर को याद करना बहुत प्रासंगिक है। डॉक्टर्स डे भारत में 1 जुलाई को मनाए जाने का एक विशेष कारण है। डॉक्टर BC राय की जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों ही 1 जुलाई को पड़ती है। वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। उन्हीं के सम्मान में भारत में डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसलिए इस डे को जो डॉक्टर्स डे है, और चूंकि ये डॉक्टर BC राय की जन्मतिथि और पुण्यतिथि 1 जुलाई को पड़ती है और उसको आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए इस शताब्दी समारोह की एक और भी एक उपलब्धि हम कहें या विशेषता, उसके लिए मैं आपके एसोसिएशन को मैं और भी बधाई देता हूँ। बाद में डॉक्टर BC राय को भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। वे एक उत्कृष्ट और सफल डॉक्टर होने के साथ साथ एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कहा जाता है कि डॉक्टरी पेशे के प्रति उनकी निष्ठा, अपनी निष्ठा के कारण उन्होंने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव शुरुआती दौर में अस्वीकार कर दिया था। अर्थात उनके सामने
दो विकल्प थे, मेडिकल प्रोफेशन में हम जुड़े रहें या फिर हम मुख्यमंत्री का दायित्व स्वीकार करें। मुझे लगता कि शायद आज की स्थितियां होती तो इससे बिल्कुल विपरीत होता शायद। लेकिन इससे एक चीज पर जो है वो अंडरलाइन इसको करना पड़ेगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की तुलना में मेडिकल प्रोफेशन को ज्यादा वरीयता दी, जिस प्रोफेशन से आप सब लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे उल्लेख भी पाए जाते हैं कि महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, जब महात्मा गांधी जी ने आग्रह किया था उनसे, और 14 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ और भी उन्होंने क्या किया था कि देश विभाजन के बाद उस बहुत कठिन दौर में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए भी वे निरंतर मरीजों की निःशुल्क सेवा करते रहे। बहुत बड़ी बात। और संयोग से उसी प्रदेश के राज्यपाल हमारे केसीनाथ त्रिपाठी जी, ये भी कैसा संयोग है। कहा जाता है कि डॉक्टर बीसी राय अपने जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने मरीजों को देखा था। उनके जीवन में एक डॉक्टर की सेवा भावना का आदर्श देखने को मिलता है। इसलिए डॉक्टर बीसी राय अवार्ड हमारे देश में डॉक्टरों के लिए सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। हमारे देश में अधिकांश लोग डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। वे अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा आप सबको सौंपते हैं। इसलिए मेडिकल प्रोफेशन केवल एवोकेशन या जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, बल्कि ये एक नोबल प्रोफेशन है। और हम सब लोग जानते हैं, अंग्रेजी में 2 शब्द होते हैं, प्रोफेशन और एवोकेशन। प्रोफेशन का पद एक मिशनरी होता है, एवोकेशन एक जीविकोपार्जन का एक जरिया होता है। और इसीलिए जो डॉक्टर्स का है उनको प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन कहा गया, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल एथिक्स की बात होती है। जबकि जो दूसरे एवोकेशंस होते हैं उनमें एथिक्स की बात नहीं होती है, उसमें केवल मॉरलिटी की बात होती है। और एथिक्स स्टैंड्स हायर देन द मॉरलिटी। मैं मानता हूं कि किसी के डॉक्टर्स के हितों का ध्यान रखने के साथ साथ मरीजों के, विशेषकर गरीब तबके के मरीजों के हितों को सर्वोपरि रखना आप सबका सामाजिक और नैतिक दायित्व है। मैं मानता हूं कि किसी मरीज को फिर से स्वस्थ बनाकर और किसी मरीज की जान बचाकर जो संतोष एक डॉक्टर को मिलता है, उसका आंकलन पैसों से नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि जीवन में जो संतोष और जीवन की जो सार्थकता मिलती है, उस दृष्टि से एक डॉक्टर का काम बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जो एक मरीज तड़प रहा है, करा रहा है, उसकी जान जा रही है, वो कभी कभी अपने मन में आंख बंद करके सोचता है कि शायद मेरा आखिरी समय है। उसके परिवार वाले सोचते हैं, और यदि आपकी मदद से, डॉक्टर की मदद से उसकी जान में जान आ जाए, वो बच जाए, उसका रोना दूर हो जाए, कराना दूर हो जाए, तो मुझे लगता है कि उसको जितनी संतुष्टि होती है, उससे बड़ी डॉक्टर को संतुष्टि होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने शायद ध्यान दिया होगा, नहीं तो मैं आज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 2017 जुलाई में 25 जुलाई को मैंने जब अपना पद भार ग्रहण किया था, तो मैंने देश के नाम एक संदेश में समाज के मैंने कई वर्गों का उल्लेख किया था, और मैंने कहा था कि समाज के इनको मैं देश का राष्ट्र निर्माता मानता हूं। और कई वर्गों में एक वर्ग था जिसमें कि मैंने मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए डॉक्टर्स और ANM को भी रखा था। और इसलिए मैं आज भी कहता हूं कि आप सब लोग, एक ये पदवी नहीं है, एक ये मानसिक संतुष्टि है
और एक ये अप्रत्यक्ष रूप में आपको जो एक संतुष्टि देता है, वो शायद आपको प्रोफेशन और जो आपको जो आपकी इनकम होती है उससे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप मानेंगे कि आप राष्ट्र के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी जाने अनजाने में निभाते हैं। इसलिए मैं आज डॉक्टर्स आप सबको मैं कहता हूं कि यू आर द नेशन बिल्डर। हमारे देश में डॉक्टरों के परिश्रम और योगदान के बल पर अनेक पैमानों पर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 68 साल से अधिक हो गई है, जो कि आज़ादी के समय केवल 32 वर्ष थी। टीकाकरण के काम में बहुत प्रगति हुई है। अन्य बहुत से मानकों पर प्रभावशाली उपलब्धियां दर्ज की गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी चुनौतियों पर विजय पाना बाकी है। मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी में कमी लानी है। टीबी, मलेरिया, हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करनी है। साथ ही डायबिटीज़ और हार्ट एलिमेंट्स जैसी लाइफ स्टाइल डिसीजेस पर भी नियंत्रण करना है। इन प्रयासों में सरकार तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ साथ आप सबकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय परंपरा में सबके कल्याण के लिए कहा जाता है कि सर्वे संतु निरामया, अर्थात सभी रोग मुक्त हो। सबके रोग मुक्त होने के इस लक्ष्य को पाने के लिए ट्रीटमेंट के अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन पर भी और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। डॉक्टरों की कर्तव्य परायणता ही जनहित में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं की धुरी है। ये सरकारी योजनाओं का अमलीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसको अपना कार्यक्रम न माने। You have to be the central point। और ये मत हम मान के चले कि ये सरकार की योजना है। सरकार की योजना है भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हम सब उसी ध्येय के लिए यही काम करते हैं। इसलिए वी हैव टू बी अ पार्टनर। चिकित्सा के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सुविधाओं का व्यापक उपयोग करने से स्वास्थ्य सेवाएं और भी अधिक प्रभावी बनाई जा सकती हैं। आजकल टेलीमेडिसिन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्व के अनेक देशों में बिग डेटा के इस्तेमाल से मरीजों को बेहतर उपचार देने की दिशा में काम हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि भारत में भी डॉक्टरों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स द्वारा इस दिशा में और अधिक काम किया जाएगा। अंत में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों को हर साल माघ मेला में, लेकिन कभी कभी कुंभ होता है, कभी कभी महाकुंभ होता है, लेकिन मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। और अभी 2019 में शायद महाकुंभ है, कुंभ। इसमें जो तीर्थ यात्रियों की सेवा करने का अवसर मिलता है आप सबको। अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ मेला पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। यह आप सबके लिए अपनी सेवा भावना को व्यक्त करने का एक महान अवसर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सदैव इलाहाबाद और भारत की मेडिकल फ्रेटर्निटी का नाम रोशन करेंगे। मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि जब बात हो रही थी इस एसोसिएशन की बिल्डिंग बहुत अच्छी है। वी कैन से इट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट मॉन्यूमेंट। लेकिन मैं सोच रहा था कि एक्सीलेंट मॉन्यूमेंट यदि आप बना सकते हैं तो ये जो अभी कुंभ का मेला आने वाला है, इसमें आपकी सर्विसेज भी जो है एक्सीलेंट हो सकती हैं, बशर्ते कि आप पूरा प्रयास करें। और मुझे विश्वास है आप करेंगे। ये इस न केवल ये उत्तर प्रदेश, न केवल भारत, न केवल विश्व के लिए एक जो मान्यता है, एक जो श्रद्धा है इस संगम के प्रति, और वो श्रद्धा मुझे कई विदेशों में देखने को मिली। वहाँ पर
वो श्रद्धा जो देखने को मिलती शायद इससे भी बढ़कर है। लेकिन मैंने उल्लेख आप सबके सामने केवल इस निमित्त किया है कि उस श्रद्धा की भावना को बनाए रखना। कहीं ऐसा ना हो कि एक लगे कि यहाँ पर जब 15 करोड़ लोग आए उनमें पता लगा कि साहब 500 या 2000 या 1 लाख लोग बीमार होकर के जा रहे हैं, किसी की कुछ दुर्घटना हो रही है। और जब होता है तो सबसे पहले सरकार पर ब्लेम करना एक बात है, लेकिन हम सब लोग यहाँ के निवासी हैं और आप सब लोग इतनी मुस्तैदी के साथ, मुझे पूरा विश्वास है, अपना प्रोफेशन यदि 1 महीने के लिए आपको उसकी गतिविधियों में कमी लानी पड़ी तो प्लीज करिए। लेकिन वो जो श्रद्धा है संगम के प्रति, उस संगम की प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना, वो डॉक्टर्स आप सबकी, आप मेडिकल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है इस काम को भी आप पूरी एक्सीलेंट सर्विसेज दे करके करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Honorable President, sir, for your most enlightening speech. Your words of encouragement was most inspiring and motivational. Thank you, sir. I now request the Secretary of Allahabad Medical Association, Dr. Tribhuvan Singh, to please propose the vote of thanks. परम आदरणीय भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला परम आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री राम नायक जी, बंगाल के राज्यपाल आदरणीय श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, स्टैंप और नागरिक विमानन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, इलाहाबाद नगर की महापौर आदरणीय श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शुक्ला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य, मित्रगण एवं अतिथि और मीडिया बंधु, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं इस अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन एवं प्रयाग के नागरिकों की तरफ से भी विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे शताब्दी समारोह पर अपने व्यस्त जीवनचर्या से समय निकालकर इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर के शिलान्यास की प्रार्थना को स्वीकार किया और यहाँ आकर अपने आशीर्वचनों से हमको अभिभूत किया। हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे। भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं परम हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर आकर हमारे संस्थान और प्रयाग की गरिमा को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री राम नायक जी का मैं अभिनंदन करता हूं और उनको विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनका आशीर्वाद मेडिकल समुदाय को हमेशा मिलता आया है, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल परम आदरणीय श्री केशरीनाथ जी का आशीर्वाद तो हमको सदैव ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रयाग राज्य के नागरिकों के पारिवारिक मुखिया हैं। इस शताब्दी समारोह को सफल बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है। उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, स्टैंप और नागरिक विमानन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता और मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता का अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आप लोग हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, इसलिए हमारे परिवार के अविभाज्य अंग हैं। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शुक्ला और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं उनको धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में यह एसोसिएशन आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि हम इस भव्य सभागार का निर्माण करवाने में सक्षम हुए हैं और आज इसका शताब्दी समारोह मना रहे हैं।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इन 100 वर्षों की यात्रा में हमारे जिन वरिष्ठ सदस्यों ने सहयोग दिया है, उनका विशेष आभार प्रकट करते हुए मैं संस्था के प्रत्येक सदस्य को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह संस्था इस मुकाम पर ना पहुँच पाती जहाँ आज यह खड़ी है। माननीय अतिथियों के साथ सम्मानित अधिकारियों, प्रशासन और मीडिया का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं। और अंत में मैं इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के समस्त कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं, जो पूरे श्रम के साथ जनसेवा में लगे रहते हैं। मैं इस समारोह की इस अवसर पर चीजल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट के निदेशक श्री मिस्टर श्रवण जी का विशेष अभिनंदन करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक प्रयास से यह सभागार आज आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Ladies and gentlemen, we conclude our program today with the national anthem. You are kindly requested to please stand up. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय जय आगे मैदान में दाखिल हो। चलो भैया पंजाब और आगे आओ, हम उधर निकल गए।